गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रेडॉक्स रिएक्शन इस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो हम देखें कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन है रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? See the definition of oxidation, addition of oxygen. It is very old definition. Addition of oxygen is called oxidation, addition of hydrogen is called reduction, removal of hydrogen is called oxidation, and removal of oxygen is called reduction. Then next definition, addition of electronegative element is oxidation and addition of electropositive element is called reduction. अब इसका उल्टा कर दें तो यहाँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो दीज फोर डिफिनीशन आर ओल्ड डिफिनीशन। नाउ कम टू द मॉडर्न डिफिनीशन। व्हाट इज द मॉडर्न डिफिनीशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। सी मोस्ट important definition is oxidation number increases is oxidation and oxidation number decreases is reduction. So come to the point, what is the oxidation number? See, oxidation number is the number of charge held by an atom to make a compound neutral. किसी भी कंपाउंड को न्यूट्रल बनाने के लिए उस एटम के पास कितना चार्ज है, ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। और ऑक्सीडेशन नंबर आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है और जीरो, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी नंबर ऑफ लॉस और गेन और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज़ ऑलवेज इन whole numbers. So it is the definition of oxidation number. Now most important things is oxidation number. So we have to know about rule to calculate the oxidation number. So first rule to calculate the oxidation number. See, first point, oxidation number of freely element either in atomic form or in molecular form, it will be 0. See example, Na, Mg, Cu, Fe, these are elements in atomic forms and these elements in molecular forms, O2, Cl2, Br2 and 2O, P4, S8, any other elements, oxidation number is 0 in freely state. Second point, oxidation number of any ion is equal to the number of charge. For example, Mg plus 2, oxidation number of Mg is plus 2, NH4 plus, oxidation number of NH4 is plus 1. Say example SO4 minus 2, what it means? Oxidation number of SO4 is minus 2. Now come to the third point, total oxidation, most important point, total oxidation number of compound is 0. Hence compound always neutral. अगर आप सारे एटम की ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं और टोटल करते हैं तो उस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल इन ए कंपाउंड इज प्लस 1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इन ए कंपाउंड इज प्लस 2। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इनको लिख सकते हैं। और सी द नेक्स्ट पॉइंट, oxidation number of hydrogen plus 1 but in metal hydride minus 1. See, metal hydride minus 1. Example, NaH, see, plus 1, hydrogen minus 1, KH, see, plus 1, minus 1. So whenever metal hydride, oxidation number of hydrogen is minus 1. Now next point है oxidation number of oxygen is minus 2 but in peroxide
-1. So what is the peroxide linkage? See, whenever oxygen forms single bond with each other, it show peroxide linkage. See, oxidation number of oxygen -1 and -1. ये it is peroxide linkage. अब एक बात आप समझ लीजिए कि जब भी दो एटम ऑक्सीजन के एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो ये पेरोक्साइड लिंकेज है। कहीं भी दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एक दूसरे के लिए कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है। तो ये बात आगे जब आप स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ ध्यान रखना है कि जब एटम आपस में बॉन्ड बनाता है तो जितने भी बॉन्ड आपस में बनाएंगे उन बॉन्ड के बदले में कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। आगे देखिए, सेम इन सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन माइनस ऑफ एग्जाम्पल KO2, RbO2 एंड CSO2। और पेरोक्साइड के एग्जाम्पल हैं, ये दिस पेरोक्साइड का एग्जाम्पल है जैसे Na2O2, K2O2, H2O2, इस तरह से ये पेरोक्साइड के एग्जाम्पल हैं और नीचे सुपर ऑक्साइड के एग्जाम्पल हैं। आगे देखिए हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2F2 +1 एंड OF2 +2। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन -1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन ऑलवेज -1 because of maximum electronegative। तो किसी भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, इसलिए हमेशा -1 रहेगा। लेकिन बट एक ऐसा कंपाउंड है फ्लोरीन का F2+ आइस कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो HOF बनता है। ये HF + HOF, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। केवल एक ही फ्लोरीन का ऐसा कंपाउंड है, लेकिन वो स्पेसिफिक कंडीशन पर है। इस वजह से हमेशा ये बोला जाता है कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है किसी कंपाउंड के अंदर कहीं भी, क्योंकि उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी अदर एलिमेंट नहीं होगा। अब हम बात करें नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल लाइगेंड इन कम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर कहीं कम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल लाइगेंड इन कम्प्लेक्स कंपाउंड इज ज़ीरो। न्यूट्रल लाइगेंड के लिए 0 होती है। एग्जाम्पल है न्यूट्रल लाइगेंड, वो हैं कौन से? तो H2O, EN, NH3, CO, ये आपके पास PH3P, NO, इस तरह से और जो भी होंगे न्यूट्रल लाइगेंड उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। कोई भी कंपाउंड अगर न्यूट्रल लाइगेंड की फॉर्म में है, जैसे NH3 है तो PH3 है, वो भी न्यूट्रल लाइगेंड है। या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है जैसे C6H6 दिया हुआ है, या ये PH3P का मतलब क्या है? तो ये C6H5 है, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन बोलते हैं इसको, फॉस्फीन बोलते हैं इसको, अमोनिया बोलते हैं इसको, वाटर है, ये इथाइलिन डायमाइन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये NO है, नाइट्रोसिन। इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। कम्प्लेक्स कंपाउंड में ये आएंगे तो ये वही लिखा हुआ है कम्प्लेक्स कंपाउंड में, इन कम्प्लेक्स कंपाउंड। अदर लाइगेंड, इनके अलावा अदर लाइगेंड कौन से होंगे जिनके? तो अदर लाइगेंड्स में उनके ऑक्सीडेशन नंबर उसी के अकॉर्डिंगली होते हैं, जैसे CN- होता है, NO2-, NH2-, NO2-, ये OH-।
तो इस तरह से आप FClBrI ये जितने भी लाइगेंड अगर वहाँ हैं इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी, NO3 -1 ये, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर इन सभी के SCN माइनस, NCS माइनस, ONO माइनस, तो इन सभी के और भी कितने भी लाइगेंड ये -1 हो गए इन लाइगेंड्स की ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरे CO3 -2 SO4 -2 वाला होता है और C2O4 -2 वाला होता है। इस तरह से ऐसे लाइगेंड देखेंगे तो इनकी -2 हो जाएगी। NH होता है वो -2 और O अगर है वो -2 और O2 -2। ये परऑक्साइडो है, ये ऑक्साइडो है, ये कार्बोनेटो, सल्फेटो, ऑक्सलेटो और इमाइडो। तो इस तरह से ये लाइगेंड इनकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है। तो अब बस हमारा पहला काम था कि डिफरेंट लाइगेंड्स की ऑक्सीडेशन, डिफरेंट एटम हो या लाइगेंड्स हो, किस कंपाउंड के अंदर किसकी क्या वैल्यू है ये हमें पता होनी चाहिए। तो अब जिसकी निकालनी है हमें ऑक्सीडेशन नंबर, हम उसकी x मानकर निकाल लेंगे और टोटल कंपाउंड की वैल्यू 0 और आयंस में उसके चार्ज के बराबर कर देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें, जैसे आपसे बोला जाए KMnO4 में ऑक्सीडेशन नंबर Mn की निकालनी है तो हम सपोज कर लेते हैं x, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn हमने मान लिया x। अब यहाँ देखिए तो एल्कली मेटल है तो +1 + x, एक ऑक्सीजन का -2 हमने लिखाया है तो -8 = 0, टोटल कंपाउंड का 0, तो x की वैल्यू +7 है। अगर एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम है जैसे K2Cr2O7 है तो हम Cr की निकालना चाहते हैं, तो हमने एक एटम की x मानी है, तो 2 एटम हैं तो ये +2 + 2x -14 = 0, 2x = +12, x = +6। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एक से ज़्यादा एटम Na2S4O6 हो जाए, तो 2 एल्कली मेटल है तो +2 हो गई एल्कली मेटल की, 4 सल्फर हैं तो +4x हो गई और 6 ऑक्सीजन है तो -12 हो गया = 0, तो 4x = 10, x = 10/4 दैट इज़ 2.5। तो ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है जो आपने पढ़ा है। तो ये जो वैल्यू है जो भी फ्रैक्शन में आ रही है इट इज़ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, कहीं भी निकाल सकते हैं। जैसे आप H4P2O5 में निकालना चाहते हैं आप, तो ये +4 + 2x - 10 = 0, तो तो H4P2O5 तो 2x = +6, x = +3। अगर आप निकालना चाहते हैं Mg2P2O7, ये देखिए तो ये अल्केलाइन अर्थ मेटल है तो +4 हो गई यहाँ पर और +2x तो फास्फोरस है, 7 ऑक्सीजन है तो -14 = 0, तो ये 2x = 10, x = +5। ज़रूरी नहीं है आप न्यूट्रल एटम में निकालना चाहते हैं, आप किसी आयंस में निकालते हैं तो आयंस में निकालते हैं तो जैसे आपको दिया है SO4 -2, तो आपको S की निकालनी है तो x - 6 = x - 8 = -2, x = +6। ये देखिए सल्फ़र की निकालनी है तो x सपोज कर लिया, 4 ऑक्सीजन की -8 हो गई एक, और ये आयन है तो आयन में चार्ज के बराबर करना है और x = +6 हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर आयंस में निकाल सकते हैं या न्यूट्रल एटम में न्यूट्रल कंपाउंड में, इस तरह से कंपाउंड के अंदर निकाल सकते हैं x मानकर। आगे हम कम्प्लेक्स कंपाउंड की भी वैल्यू देखना चाहते हैं। तो अब देखिए हम अगर NH4+ हमारे पास है तो हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो N का निकालना है तो x हाइड्रोजन का +4 = +1, x = -3। इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी N2H5+ है तो सिमिलरली यहाँ पे +2x + 5 = +1, तो 2x = -4, x = -2।
तो इस तरह से हमने आयन की ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया। अब मान लीजिए हमारे पास कोई कम्प्लेक्स कंपाउंड है K4FeCN6, तो ये है, तो हम यहाँ पर +4 + x -6 = 0 कर देंगे, क्योंकि ये अल्कली मेटल है। तो एक 4 अल्कली मेटल है तो +4 हो जाएंगी और x इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। और साइनाइड है, एक साइनाइड का -1 हमने पीछे लिखाया है आपको, तो ये -6 = 0, तो ये x = +2 हो जाएगा इससे। अगर आपके पास COEN NH3 H2O Cl2 NO3 है, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ये फर्स्ट एटम मेटल होता है और उसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है किसी भी कंपाउंड में। ये फर्स्ट एटम जो होता है कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर, तो उसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो इसको मान लिया x, अब ये न्यूट्रल लाइगेंड है तो 0, न्यूट्रल लाइगेंड है 0, न्यूट्रल लाइगेंड है 0। 2 क्लोरीन का -2 हो जाएगा, क्योंकि एक क्लोरीन का -1 होता है। और ये NO3 है तो इसका ऑलरेडी -1, दिस = 0, x = +3 आ जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास इस तरह से NiCO4 +2 है, तो ये आयन हो गया, तो ये x मान लेंगे निकल का, और न्यूट्रल लाइगेंड है तो 0 = +2, x = +2, इस तरह से। अब यहाँ देखिए H2O5 NoSO4, यहाँ Fe का निकालना है। तो ध्यान रखना है आपको कि NO न्यूट्रल लाइगेंड है, NO न्यूट्रल लाइगेंड, बट इन केस ऑफ Fe कम्प्लेक्स, ये आयरन कम्प्लेक्स जो भी होंगे, इन केस ऑफ आयरन कम्प्लेक्स NO टेकन एज पॉजिटिव लाइगेंड, NO+ लिया जाता है, ये पॉजिटिव लाइगेंड लिया जाता है जब भी आयरन कम्प्लेक्स हो। तो हम यहाँ देखें कि ये FeH2O है तो X प्लस ये न्यूट्रल लाइगेंड है और ये +1 लेना पड़ेगा क्योंकि आयरन के साथ आया है, -2 = 0, x = +1। इस तरह से अब आप देखें तो आयरन, इस तरह से आयंस भी हो गए हमारे पास और कम्प्लेक्स कंपाउंड भी हमने डिस्कस कर लिए। तो इस आगे चलें तो कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, जैसे सपोज आपसे बोला जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5 दिस, तो अगर आप देखें तो नॉर्मल निकालें तो x -10 = 0, x = +10, नॉट पॉसिबल ही नहीं है ये ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये आपको सावधानी रखनी है। उस केस में ये है, आपको इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, तभी आप उसकी वैल्यू का एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। तो अगर हम क्रोमियम का देखें तो क्रोमियम की ये इस तरह से CrO5 की स्ट्रक्चर जो बनती है ये बटरफ्लाई शेप बनती है, और यहाँ पर देखें तो ये 2 पेरोक्साइड लिंकेज हैं इसके पास। ये पेरोक्साइड लिंकेज किसको बोलते हैं, तो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है कि जब ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो पेरोक्साइड लिंकेज है, और जैसे ही आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये बॉन्ड बेकार हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि आपस में जब भी बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड के बदले में कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड की नहीं होती है, किसी भी एटम की नहीं होती है। तो ये वाला बॉन्ड इनके लिए बेकार है। एक ही बॉन्ड ये बना रहे हैं मेटल के साथ, तो ये दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड बन रहा है उसके रिस्पेक्ट में इसकी -1, इसकी -1, इसकी -1, इसकी। तो इस पेरोक्साइड में आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो ये -1, -1, -1, -1, और ये नॉर्मल ऑक्सीजन -2 है, तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6। तो अब ओवरऑल आप ऐसे समझ लीजिए कि पूरी केमिस्ट्री में जो अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑफ ऑस्मियम एंड रूथेनियम। ये 2 एलिमेंट हैं, ऑस्मियम OS होता है, रूथेनियम RU होता है, और उसकी वैल्यू +8 होती है। तो पहले ही सावधान हो जाना चाहिए आपको कि +8 से ज़्यादा तो पूरी केमिस्ट्री में किसी का ऑक्सीडेशन नंबर हो ही नहीं सकता।
अच्छा, अब वैसे भी देखें कि किसी भी एटम में, अब ये ज़रूरी नहीं है, अब आपको मान लो स्ट्रक्चर किसी की पता नहीं है और उस केस में अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम कैन नॉट एक्सीड इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये है, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसकी अपनी मैक्सिमम को पार नहीं कर सकता। तो क्रोमियम की मैक्सिमम +6 होती है, तो एग्जांपल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +6, 4s1 3d5, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मैक्सिमम बाहर निकाल सकता है, तो इसका +6 है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने जो 10 निकाला है वो हमने लिख दिया नॉट पॉसिबल। तो जब भी आप किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें और उसकी मैक्सिमम को पार कर जाता है तो समझ जाना है कि आपसे गड़बड़ी हो गई है और उस समय आपने उसका आंसर मैक्सिमम कर देना है, स्ट्रक्चर आपको आए या नहीं आए, ये है। तो देखिए ये यहाँ एटम लिख रहे हैं और यहाँ मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं। तो हमारे पास एटम सपोज कार्बन है, नाइट्रोजन है, और कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। तो कार्बन की मिनिमम -4, मैक्सिमम +4, नाइट्रोजन की -3 +5, फास्फोरस की -3 +5, सल्फर की -2 +6। इसी तरह यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, फिर सेलेनियम, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो मिनिमम -2, मैक्सिमम +2 ऑक्सीजन के लिए, सेलेनियम के लिए -2 +6, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए -1 -1 +7 +7 +7। इस तरह से इनकी ऑक्सीडेशन नंबर है। ये हमने कुछ नॉन मेटल्स यहाँ पर लिख दिए, यानी एटम सभी ये लिख दिए हैं, ये सब नॉन मेटल्स हैं, इसलिए इनकी मिनिमम वैल्यू माइनस में है। मिनिमम वो होती है जो वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेता है, और मैक्सिमम वो है जितने वो आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो इस तरह से ये सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो मिनिमम आपको पता लग गई कि ऑक्टेट के वो इलेक्ट्रॉन है वो मिनिमम है, और मैक्सिमम जितने उसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन वो छोड़ सकता है वो मैक्सिमम में है। बस ऑक्सीजन का ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ सकता, केवल 2 छोड़ता है। इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए।